The title of the topic is A Model for Network Security. सबसे पहले इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं. After completing this topic, a student would be able to describe a model for network security. जो figures है, जो material है in this topic, they have been adapted from the book with the title Network Security Essentials, Applications and Standards. The author of the book is William Stallings. अब हम assume करते हैं कि एक मैसेज है and you want to transfer that message from one party to another party across some sort of internet service. The two parties who are the principals, हम उन्हें principals कह रहे हैं, in this transaction must cooperate for the exchange to take place. तो जब तक दो parties आपस में coordinate नहीं करती, they don't cooperate with each other, आपकी जो information है, it won't take place. Now, what we need to do is एक logical information channel establish करना पड़ता है by defining a route through the internet from the source to the destination. और ये क्या हो सकता है, आपका एक TCP IP जो प्रोटोकॉल है, जो सूट है, it can be helpful in this regard to establish the connection. अब जो information transfer होगी, you need to protect the information from an opponent. जो opponent क्या करना चाह रहा है, वो eavesdrop करना चाह रहा है. He is there to present a threat to confidentiality, आपकी confidentiality को, authenticity को, and so on. Security, in this regard, security comes into play. So all of the security techniques have two components. जितनी भी security techniques हैं, उनके दो broad components हैं. पहले component का क्या नाम है? It's a security related transformation on the information to send. तो जो आपने information भेजनी है from the source to the receiver, आप क्या कर सकते हैं? उसको क्या करें? Transform कर दें. And this, an example of this is आप encryption कर दें आपने जो message की. जब आप इंक्रिप्शन करते हैं अपने मैसेज की, तो आपका जो मैसेज है वो स्क्रैम्बल हो जाता है. सो इट इज अनरीडेबल बाय द ओपोनेंट. अनदर एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी इज कि आप क्या करें, यू ऐड ए कोड बेस्ड ऑन द कंटेंट्स ऑफ द मैसेज विच कैन बी यूज्ड टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द सेंडर, ताकि आप जो सेंडर है, जो सोर्स है, उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकें. द सेकेंड इज सम सीक्रेट इंफॉर्मेशन can be shared by the two principals and which is unknown to the opponent. For example, एक encryption की, अगर आप और मैंने information को exchange करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस message को encrypt कर दें. लेकिन ये जो encrypt करेंगे, you need an encryption key for this purpose. तो वो जो encryption key है, वो आपको मालूम होनी चाहिए और मुझे मालूम होनी चाहिए और opponent को unknown होना चाहिए. So you need an encryption key used with the transformation, जो क्या करेंगे, आपके message को scramble कर दे before you transmit it, and as soon as आप उस मैसेज को रिसीव करें, तो आप उसी की के साथ उसे अनस्क्रैम्बल करके उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को रीड कर सकें. Now we may have a trusted third party, जिसे हम TTP भी कहते हैं. You may need it to achieve the secure transmission. For example, a TTP may be responsible for distributing the secret information to the two principals while keeping it away from the opponent. तो अगर आप और मैंने इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करके और डिक्रिप्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एक टीटीपी जिसके ऊपर आप भी ट्रस्ट करते हैं और मैं भी ट्रस्ट करता हूं, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, जो आपको भी की देगा और मुझे भी की देगा. उस की के साथ मैं इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट करूंगा, एंड एज सून एज यू रिसीव माई मैसेज, आप क्या करेंगे, उस मैसेज को डिक्रिप्ट करके आप उसे रीड कर सकते हैं. नाउ दिस जनरल मॉडल, इट शोज दैट देयर आर 4 बेसिक टास्क्स इन डिजाइनिंग ए पर्टिकुलर सिक्योरिटी सर्विस. अगर आपने एक सिक्योरिटी सर्विस डिजाइन करनी है, तो 4 बेसिक टास्क्स हैं. लेट्स लुक एट देम नाउ. टास्क नंबर 1 इज यू नीड टू डिजाइन एन एल्गोरिथम फॉर द सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन. जो आपने डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है ताकि वो अनरीडेबल हो जाए, यू नीड टू डिजाइन एन एल्गोरिथम फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड एन ओपोनेंट शुड नॉट बी एबल टू डिफीट द पर्पस ऑफ द एल्गोरिथम. अगर उसके पास एल्गोरिथम मिल भी जाता है, लेकिन वो उस एल्गोरिथम का जो पर्पस है उसको वो डिफीट ना कर सके. Then secondly, हमने क्या करना है, we need to generate the secret information used by the algorithm. ये जो secret information है, जो जिसे आप की भी कहते हैं, ये आपने opponent को लीक नहीं होने देनी, ये opponent इसको एक्सेस ना कर सके, क्योंकि जो आपका algorithm है वो उसके पास हो भी जाएगा, लेकिन ये जो secret information है, in case he has the algorithm but he does not have this secret information, वो आपकी information को decrypt नहीं कर सकता. Then third, we need to develop methods for the distribution and sharing of the secret information. ये जो secret information है, जिसे हम की भी कहते हैं, की भी कहा जा सकता है,
तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. सो वी नीड टू डेवलप मेथड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट, राइट? And then towards the end, that is the fourth component, you need to specify a protocol which will enable the principals to use the security algorithm and the secret information for a particular security service. तो ये 4 tasks हैं जो आपने carry out करने हैं. अब हम इस डायग्राम पे आते हैं. इस डायग्राम में हमने जो नेटवर्क सिक्योरिटी का जो मॉडल है, ये जेनेरिक मॉडल डिस्क्राइब किया गया. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज अ सेंडर जिसने एक मैसेज को ट्रांसफर करना है टू द रेसिपिएंट. तो अब वो क्या करता है, वो कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन करता है, इस मैसेज को लेता है, ट्रांसफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन विच कैन पॉसिबली बी एन इंक्रिप्शन की. अब आपके पास मैसेज क्या हो गया, सिक्योर हो गया. अब इस सिक्योर मैसेज को आपने अपने जो इंफॉर्मेशन चैनल है इसमें पास कर दिया है. इंफॉर्मेशन चैनल में अगर ओपोनेंट इस मैसेज को, सिक्योर मैसेज को रिट्रीव कर भी लेता है और उसके पास आपका सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन भी है, लेकिन जब तक सीक्रेट इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है तो वो उस मैसेज को रीड नहीं कर सकता. तो क्या होता है, इंफॉर्मेशन चैनल से इंफॉर्मेशन गुजरेगी एंड देन इवेंचुअली इट विल रिसीव ऑन द रिसीवर साइड. तो रिसीवर क्या करेगा, उस सिक्योर मैसेज को लेगा, सिक्योरिटी रिलेटेड ट्रांसफॉर्मेशन कैरी आउट करेगा विद द हेल्प ऑफ द सीक्रेट इंफॉर्मेशन एंड देन ही वुड बी एबल टू रीड आपने जो से मैसेज कन्वे करना था. अब ये जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑन द सेंडर साइड, ऑन द रिसीवर साइड, ये जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है इसको आपका जो सेंडर है इसको कैसे पहुंचाया जाए और इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिसीवर तक कैसे पहुंचाया जाए. तो वी मे नीड ए ट्रस्टेड थर्ड पार्टी जिसे हम टीटीबी कहते हैं. ये आपका सीक्रेट इंफॉर्मेशन दोनों एंड्स पे पहुंचा सकते हैं. अब हम नेक्स्ट आते हैं. नेक्स्ट वी डिस्क्राइब ए जनरल मॉडल which reflects a concern for protecting an information system from an unwanted access. अगर आपको कोई अनवांटेड एक्सेस है तो आप अपने सिस्टम को कैसे बचाएंगे. अनवांटेड एक्सेस कौन कर सकता है, एक हैकर जो आपके सिस्टम की कोई वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके एंटर हो जाता है और वो क्या करता है, आपके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करता है. एक पर्सन जिसका नाम है इंट्रूडर. इंट्रूडर क्या है, ही इज ए डिस्ग्रंटल्ड एम्प्लॉय who wishes to do the damage, or a criminal who seeks to exploit computer assets for the financial gain. ये वो बंदा है जो आपकी कंपनी में हिस्सादार तो है लेकिन he's a disgruntled employee. तो वो क्या कर सकता है, कुछ क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, कोई नंबर्स आपकी स्टील करके उसे एक्सप्लॉइट कर सकता है आपको. तो ये जो मॉडल है जिसे हमने इन दोनों को बचाना है, वी नीड टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट गेट कीपर फंक्शंस टू आइडेंटिफाई द यूजर्स. तो आपको गेट कीपर फंक्शन चाहिए ताकि आप ये जो यूजर हैं इनको आइडेंटिफाई कर सकें. फर्दर मोर वी नीड टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स टू इंश्योर ओनली ऑथराइज यूजर्स कुड एक्सेस द डेजिग्नेटेड इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज. आप ये जो 2 इश्यूज थे इनसे बचने के लिए ये डायग्राम हम देख रहे हैं जिसमें नेटवर्क एक्सेस सिक्योरिटी मॉडल है. तो यू हैव ए गेट कीपर जिसका फंक्शन क्या है कि अगर कोई ओपोनेंट या कोई हैकर, कोई सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल कोई वायरस है, कोई वॉर्म है, वो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर दाखिल ना होके आपके जो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज है उनको डैमेज ना कर सके. आपका डेटा है, आपके प्रोसेसेस है, आपका सॉफ्टवेयर है, एंड देन फर्दर मोर यू हैव सम इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल्स. सो यू नीड ए गेट कीपर फंक्शन इन ऑर्डर टू कीप such opponents away from your information system. So another type of unwanted access is the placement in a computer system of a logic that exploits the vulnerabilities in the system and then can affect the application programs like viruses. तो इनसे भी आपने बचना है. तो इस टॉपिक में हम लोगों ने एक नेटवर्क सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने का एक मॉडल देखा है.